Hello, all. Welcome to Python Academy. Those who are joining one by one, and those will be joining after some time also. I first welcome you all to a new episodes which we are going to start from today, which is specifically the data journey. So, when you talk about the data journey, it is actually specifically the journey of our own students of our Python Academy who started their journey from different background. And on that, for the first episode, we have Mr. Nikhil, who is I think 3 years now from our Python Academy when he started the course. He has a very interesting background. He will tell about all that thing that will be there. The things he followed when he was in academy before that and after the academy, what are the things we should follow. So because academy is one point in time where you start something new, but it is again when the academic course ends, you never think that everything is ended. Okay, actually it is a start of your journey, because at that point our job as a trainer ends, but yes, our job is still continue with whatever the new requirements going on, what are the things we should provide to you, that also continue. But for specifically as a student, for you the journey actually begins, and then that journey continues with multiple ups and downs. Okay, so Nikhil obviously observing that ups and down previously also and right now also. So welcome Nikhil to this session. So before beginning this session, let's have your small introduction, your background, and then I will put some of the question which we got from the students also, and some my own question one by one. So handing over to you, Nikhil. Okay. Thank you, Anu sir, for giving me opportunity to share my experience with young brighter minds. So, good morning, everyone. My name is Nikhil Lokhande. By profession, I am a postgraduate mechanical engineer, and right now I am a senior data engineer at Converge.ai, which is Nagpur-based company. So currently, I am working as a supplier chain management, supplier chain management. We can say the technical expertise in the field of data engineering, and the project is based upon supply chain management, and that's why I have a good knowledge of manufacturing as well. Because being a mechanical engineer, I know some of the manufacturing techniques and processes which are implemented in the manufacturing industries. So right now, you can say I am working as a domain expert for the client. My primary responsibilities are to understand the client business, to understand the data, and create the pipelines with business logics. So overall, I am contributing to client engagements, preparing daily stand-up reports so that everyone should be on the same page with the all updates. So come to Python Academy. पाइथन एकेडमी ने ही मुझे ऐसा चांस दिया जिसमें मैं सबसे पहले पाइथन थ्रू डेटा एनालिटिक्स कर पाया बिकॉज my journey is a little bit very difficult when I like to switch my career into data analytics. तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ कि हाउ आई ट्रांजिटेड टू द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड द डेटा एनालिटिक्स. So initially, I work as a assistant professor in one of the diploma engineering college in Nagpur since from last 10 years. उसके बाद मैंने ये सोचा कि अपने जो डे टू डे रूटीन होता है टीचिंग में कि कंट्रीब्यूट करना पड़ता है हर बार कि कैसे लेक्चर्स लिया जाए, कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबको पढ़ाया जाए. मैंने उस फील्ड में बहुत सारा मेरा अनुदान दिया और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि देयर शुड बी सम चेंज इन द करियर. So in teaching, generally we have to attend some workshop and conferences. You know all that those who are from engineering background, you have some research paper to publish every year. Then you have to contribute the projects, mini projects, major projects as well. So उस केस में there is a regular practice for faculties also to attend the conferences, workshops, so that we should be uh, uh, updated through every recent development in the market. So एक सिंपल सा एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में था,
I came to know about some data analytics as a career path when I attended one workshop, say a conference on the data analytics by Tableau. So Tableau is one of the BI tool you all know, and where in that conference, one person who is data analyst was fetching the data from Excel, which has almost 1 million records, and he created a beautiful dashboard showing some insights within 5 to 10 minutes. So I was surprised that having working on Excel in from many years in my teaching fields to calculate the student records, to maintain the historical data in the Excel, so this particular data analyst is spend almost 5 to 10 minutes on the Excel sheets and made a beautiful dashboard. So I was surprised of having some creative BI tool gives me a whole insight in just 10 minutes. So I am very curious at that point कि ये कैसे कर दिया इस बंदे ने. तो धीरे धीरे मैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स थोड़ा रिसर्च करते रहा बिकॉज सिंस आई वाज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर. सो आई वाज लिटिल बिट क्यूरियस अबाउट एवरी एक्टिविटी, एवरी ट्रेंड विच इज बूमिंग इन द मार्केट. सो सो ये डेटा एनालिटिक्स का जो प्रोजेक्ट है ये धीरे धीरे मैंने माइनर या मिनी प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने स्टूडेंट्स को देना शुरू कर दिया एज अ इंटरनल एक्टिविटी ऑफ माई पार्ट, सो दैट स्टूडेंट ऑल्सो कैन लर्न और मैं भी उसमें कुछ ना कुछ एक स्टडी करके उनको गाइडेंस दे सकूं. सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग BI टूल्स एज वेल एज द पाइथन because as a mechanical engineer there is a little bit challenge to code, and we are little bit avoid to write codes because we are deals with the machines, right? So those who are mechanical engineers in this uh, session, they know very well Yes. that sometimes And that there is happens a for our also those students who comes from other background, specifically yeah, mechanical, or they have first question, jamega kya? yes, So so that was because coding you have done something like C or C++, wo bhi first year mein, then you never touch that. But now correct, the good thing is many of the college has some elective part, so that yes, is an yes, added advantage. But yes, those who are joining here, I will definitely say ki Python will be a very good base for that. Yes, and then Nikhil will correct. provide the details on definitely. So how you choose the Python to be a starting point? Yes. So I started learning Python from YouTube channels first. Before joining Okay. your academy, I Okay. have a good research on Python because whenever we have to learn coding, so Mhm. coding is not my background initial at its initial phase. तो मैंने धीरे धीरे Mhm. पाइथन के छोटे छोटे वीडियोस यूडेमी से जो कोर्सेस अवेलेबल थे वो मैंने देखना Okay. स्टार्ट किए. लेकिन वही Mhm. है कि पेशेंस इज द की, और जो फोकस रहता है ड्यूरिंग द कोडिंग वो नहीं था मेरे में. तो Mhm. मैंने धीरे धीरे पाइथन से हट के BI टूल्स पे बेसिकली फोकस किया और मैंने सबसे पहले टैबलू यूज किया. बट मैंने जब Okay. देखा कि मार्केट डिमांड इज लिटिल बिट ऑन कोडिंग साइड, क्योंकि अगर Mhm. आपको कोडिंग आती है देन डेफिनेटली यू आर द बेस्ट पर्सन टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी इनटू द मार्केट. सो कोडिंग Correct. इज द बेस्ट थिंग टू लर्न. It requires some focus and discipline at its initial stage, but definitely अगर sometimes मेरा अगर एग्जांपल लेता हूँ तो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मैंने कभी भी 10 साल में कोई भी कोडिंग नहीं की थी, और मैंने जब Yes. कोडिंग स्टार्ट की तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो बहुत डिफिकल्ट जॉब है और मुझे नहीं जमेगा ऐसा लगता है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा सबसे पहले तो इनिशियल फेज में टाइम देना पड़ता है, विच इज़ नॉट Correct. इन माई केस बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग एज अ प्रोफेशनल इन वन ऑफ द इंजीनियरिंग Yes. कॉलेज. तो उसके लिए जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता था शाम को, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था. तो Mhm. मैंने वो धीरे धीरे उसको टाइम देना स्टार्ट किया बिकॉज आई एम ऑलवेज क्यूरियस अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स. तो मैंने वो Correct. धीरे धीरे टाइम देना स्टार्ट किया और मैंने जब देखा कि अरे यार अभी यूट्यूब वीडियोस कुछ काम नहीं करेंगे, तो लेट्स ज्वाइन द एकेडमी ऑफलाइन. तो मैंने जब नागपुर में सर्च किया कि गूगल पे कि कौन से ऐसे एकेडमिक्स है या एकेडमी है जो ये पर्टिकुलर पाइथन कोर्स मुझे सिखाएगी, बिकॉज आई एम मोर Correct. इंटरेस्टेड इन ऑफलाइन देन ऑनलाइन. And during that Mhm. COVID season for almost 2 years, Yes. everyone Mhm. everyone was working virtually, learning Yes. virtually, and at that time most of the YouTubers are also activated on the YouTube channels, so they Yes. created the channels and making And that all the was the things. difficult time. Means even Yeah, we as an academy, we have taken some session online, but it was not feel good for us also. And as a trainer, मुझे भी वो अच्छा नहीं लगता था जब तक मेरे सामने बच्चे बैठ के सीखते नहीं है.
वो मजा नहीं yes, रहता। कैसे उसमें हर एक के पास जाना, उसका देखना कंप्यूटर की क्या कोडिंग किया, क्या गलत हुआ, एरर आया तो अरे ये यार, that thing never happens in online, that is there. But yes, correct, as per the convenience, जिसको ऑनलाइन करना है they can go with the online, those who want to do offline can go for offline. Yes, Nikhil. ऑफलाइन। सो उसके बाद फिर मुझे ये पता चला कि अगर अपन ऑफलाइन करते हैं तो इट विल बी मोर मोर ऐसा वो लगेगा कि कुछ ना कुछ तो अपन सीख रहे हैं, क्योंकि अपन वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं कुछ ना कुछ। और Yes, जैसे आप जब सिखाते थे तो आप देखते थे कि कहाँ पे कौन डिफिकल्टी फेस कर रहा है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। आपका एक तरीका रहता था कि नहीं नहीं, आप यहाँ पे अगर इशू फेस कर रहे हो तो व्हाट विल बी द योर फर्स्ट थिंकिंग और लॉजिकल प्रोसेस टू सॉल्व दैट एरर। तो ये जो चीजें हैं ये ऑफलाइन में ज्यादा हमेशा फायदेमंद रहेगी। सो correct. नेक्स्ट थिंग, जब मैंने पाइथन लर्निंग स्टार्ट की थी तो आपने सबसे पहले एक हमें गुरु मंत्र दिया था कि गो फॉर द प्लेटफॉर्म्स लाइक हैकर रैंक, लीड कोड, which gives you the Correct. opportunity to learn more. And there are some difficult cases because there are 3 phases to learn: basic, intermediate and expert level. Yes, And there is yes, a yes. test cases also, we have to pass that all test cases so that you can Good. learn many things and how to Yes, write the code. सो वो correct. बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म था हमारे लिए सीखने के लिए। हमारे बैच ने सभी लोगों ने वो इम्प्लीमेंट किया और Yes, सब लोगों ने yes. वो कोडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की। एट मीन Very. वाइल मुझे पाइथन एकेडमी का और एक बहुत अच्छा अप्रोच लगा कि आप लोगों ने केस स्टडीज दी थी, जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे फ्रॉम कैगल, यू हैव अ डेटा Yeah, सेट्स ऑन द कैगल। और उसके बाद फिर जो पांडाज और नमपाई लाइब्रेरीज थी वो यूज करके correct. हमने Python, with the help of Python, we have completed that project of data analytics. Correct. So ये सारी Correct. चीजें जो है वो धीरे 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 मेरे करियर में आते गई, मैं सीखता गया। एंड वंस आई गेट द अपॉर्चुनिटी, I again come to know that there are some more things to learn. Python is just Correct. a language, and we Beginning have for to that. always implement that language in every sector, in every Correct. domain, and in every project. By writing Python script, you can do your task more uh, uh, successfully. Then you can Yes. implement some codes in between the projects for web development, for AI ML, the libraries that are generally used like Seaborn, Matplotlib, then NumPy, Pandas. So these are the Yes. libraries generally used. So I learned during my after the academy. I left academy in the month of like April. So Yeah. after that, I completed one more cloud technology called Azure. So Yes. मुझे जब ऐसा पता चला कि मेरे जो सीनियर्स लोग थे जो आईटी कंपनीज में काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे बोला Mm-hmm. कि ओके, यू नो द पाइथन, यू आर वर्किंग ऑन पाइथन, दैट्स गुड, बट उसके अलावा अपने को और स्किल सेट बढ़ाना चाहिए ताकि Correct. यू शुड बी देयर टू हैंडल द प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंटली। क्योंकि जब भी Correct. प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आती है तो हमें सबसे पहले ऐसा नहीं आना चाहिए कि मुझे सिर्फ पाइथन आता है, देयर शुड नॉट बी एनी Yeah. लिमिटेशन। तो उसके Correct. लिए फिर क्लाउड टेक्नोलॉजी मैंने सीखा, उसके बाद एक बीआई टूल सीखा, टैबलू, पावर बीआई। उसके बाद फिर मैंने क्लाउड टेक्नोलॉजी अज्योर पे एक सर्टिफिकेशन किया विच इज मोर डिमांडिंग राइट नाउ इन द मार्केट। Yes. एनीवन, जैसे Correct. जीसीपी है, अज्योर है, या फिर एडब्ल्यूएस है, ये कोई भी एक क्लाउड टेक्नोलॉजी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टुडेज यंग जनरेशन। क्योंकि जब भी आप कोई भी इंडस्ट्री में एंटर करते हो तो सबसे पहले डेटा जो रहता है वो क्लाउड पे रहता है। Correct. Nowadays, on-prem data is generally avoided by all the clients. They are on cloud. So cloud technology आपको आनी ही चाहिए. You must learn the cloud technology, and for So that this there are additional specific thing you are doing while your patient's time also started, right? यानी course yes, yes, complete हो गया था and you started, I think, applying also at multiple places. And there correct. are few calls will not happen. So that is the journey where you started with these multiple things, right? Yes, yes. So apart from this, there is a lot of things to work on. Python is just I think one key to enter into the corporates, but Yes. there are soft skills also, because I work on soft skill and still learning, because Mhm. there are client engagements, how to write email. So you must know email etiquettes. Then Exactly. improve your presentation skill during the presentations to client. Then how to understand data, what is the data, what is the pattern of data,
is there any Correct. outlier? So these are the initial phases. So when you taught us the Python, you have there is a one course also like SQL. So right now I don't know, you are learning, going to learn Yeah, SQL. we have the sequel also. अच्छा, तो अभी That बच्चे is the सीक्वल भी, हाँ सीक्वल भी सीख yes, रहे हैं, ठीक correct, है. correct. सो Previously it was not there, so we हाँ हाँ, have added that because the requirement is still there. Means it is in यस it is यस. there. सो आई विल से पाइथन के बाद सबसे सेकंड लैंग्वेज जो है वो सीक्वल ही है, क्योंकि Yes, इसके बाद अगर आपको डेटा फेच करना है, ठीक है, डेटा का पैटर्न देखना है, तो सीक्वल इज मोस्ट पॉपुलरली यूज. एंड आफ्टर पाइथन अगर आपको सीक्वल भी आती है, देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन द कंपनी इज मोर. बिकॉज क्या होता है कि जनरली आपको सिंटैक्स याद नहीं रहते, क्योंकि ये मैंने प्रॉब्लम फेस किया कि जब मैं बहुत सारी कोडिंग कर लेता था तो मैंने एक पैटर्न एनालाइज किया, क्योंकि जब मैं टीचर था तो मुझे एक पर्टिकुलर आदत थी नोट्स बनाने की. तो मैं क्या करता था कि जब भी कोई भी इंटरव्यू देता था तो मैं उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है जो इंटरव्यू पूछते थे वो एक पेज पे लिख लेता था और उसका फिर आंसर सिलेक्ट करके रख देता था, ताकि अगर नेक्स्ट इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो yes, आई विल yes. बी कॉन्फिडेंट टू गिव दैट That आंसर. is the exactly thing everyone should now learn this. यस, ऐसे होता है कि एक बार इंटरव्यू होता है उसमें नहीं आया, पर नेक्स्ट टाइम वही क्वेश्चन पूछा तो फिर से नहीं आया. सो आई ऑलवेज से इसका तो कोई मतलब ही नहीं. यू हैव मतलब ही टू नहीं है. राइट डाउन दैट इमीडिएटली. वेरी गुड. तो ये जो लिस्ट है क्वेश्चन आयर मैंने बना लिया, और एक समझ लो मेरे पास 25 से 30 क्वेश्चंस बन गए, ठीक है. अब ये 25 से 30 क्वेश्चन में से जब मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया था आफ्टर गिविंग 10 to 15 इंटरव्यूज, बिकॉज माय फर्स्ट चैलेंज वाज आई एम नॉट अ आईटी गाय, ठीक है. सो मुझे कंसिडर किया जाता था कि यू आर फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, सो हाउ वी कैन सिलेक्ट यू. तो उसके लिए फिर मुझे ये सारी चीजें बताना पड़ता था कि दो आई एम from non-IT background, I know Python very well. My code writing is very fast. You can check my code writing. Then I have good knowledge of SQL. I have good knowledge of BI tools like Tableau and Power BI. So जब मैं मार्केट में खुद को प्रेजेंट करता था तो मेरे पास सबसे पहले बताने के लिए ये था कि मेरे पास दो टीचिंग बैकग्राउंड है. आई विल बी योर एजुकेशन डोमेन एक्सपर्ट. सो अगर आपके पास अगर एजुकेशन डोमेन के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आई विल बी योर डोमेन एक्सपर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर Yes, प्रोजेक्ट. तो correct. ये मेरा पहला उनको बताने का तरीका था. उसके बाद फिर वो मुझे थोड़ा बहुत एंटरटेन करते थे क्योंकि मुझे पाइथन आता था, एंड दैट इज मोस्ट अगेन डिमांडिंग है. तो अभी भी पाइथन डिमांडिंग ही है, क्योंकि हमारे कंपनी में हर एक प्रोजेक्ट में पाइथन यूज किया जाता है. तो आपको Correct. पाइथन में एक ऐसा हैंड लेना है कि आपको उसकी जितनी भी लाइब्रेरीज पॉपुलरली यूज होती है, ठीक है, वो भी Correct. आपको हमेशा उसकी प्रैक्टिस करते रहना है. सेकंड चीज, जो कैगल पे डेटा सेट्स अवेलेबल है वो डेटा सेट्स आप यूज करो प्रैक्टिस के लिए. Yes. उसका एक प्रॉपर एक गिट रिपोजिटरी बनाओ, ठीक है, जो Correct. मैंने भी बनाई थी. और गिट रिपोजिटरी में वो आपके के जो कोड्स है, जो आपके जो टोटल प्रोसीजर्स है, जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे पुश कर दो. Push. क्योंकि जब आप रिज्यूमे बनाते हो तो सबसे पहले आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए, और सेकंड चीज यानी Yes. आपकी गिट रिपोजिटरी अपडेट होनी चाहिए, और वो गिट Correct. रिपोजिटरी की हाइपरलिंक आपने वो रिज्यूमे में डालनी है. क्योंकि उससे क्या Correct. होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपके गिट रिपोजिटरी से थ्रू जाता है और उसको ये पता चलता है कि ये बंदे ने कुछ ना कुछ काम किया है जो यहाँ पे Correct. रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो उसके दो एडवांटेजेस है. एक तो वो आपको टफ क्वेश्चंस नहीं पूछता है, आपने जो प्रोजेक्ट किए हैं वो उसी के उसी ऊपर पे है. क्वेश्चन पूछेगा, So you can ठीक है. divert the interview actually rather करेक्ट, than वो करेक्ट, multiple question यहाँ वहाँ का पूछने से अच्छा जो किया है उस पे अच्छा, ही पूछेगा. करेक्ट. और वो ज्यादा ज्यादा कोडिंग भी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसमें आपके कोड्स भी दिखते हैं. तो वो Yes. अगर आपने कुछ बहुत लेंदी कोड लिखा होगा तो वो एक ही पूछेगा कि हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज दिस पाइथन कोड. तो उसके लिए हाँ. क्या फंक्शन यूज करोगे, कौन से कंस्ट्रक्टर यूज करोगे, कौन से इटरेटर्स यूज करोगे, ऐसा कुछ ना कुछ वो पूछेगा. बट Correct. आप उसको अपने पाथ के ऊपर इंटरव्यू लेना के लिए डाइवर्ट करोगे, ना कि उसके क्वेश्चन आयर्स के ऊपर. सो दिस इज वन ऑफ So द that is टेक्निक a टू skill क्लियर again, इंटरव्यू. how to यस divert an यस interview. यस. तो ये मुझे टीचिंग के तरीके से आई थी, क्योंकि हाँ. मैं टीचिंग में जब था तो मुझे पता Yes. था कि हाउ टू इंटरेक्ट विद द इंटरव्यूअर, हाउ टू Yes. वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल एंड प्रेजेंटेशंस. सो ये सारी Mhm. चीजें तो है, ये बहुत मायने रखती है टू क्लियर द इंटरव्यू. नाउअडेज अगर आप देखोगे तो मैं ट्रेंडिंग सिनेरियोज बताता हूँ जिसमें आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं. इवन दो यू Okay. आर गुड इन पाइथन एंड सीक्वेल,
दे गिव्स यू सम टेबल्स लाइक सिनेरियो कि मुझे मेरे पास 2 टेबल है, फिर इसमें ऐसा ऐसा डेटा है, हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, व्हाट विल बी योर करेक्ट। आउटपुट। अगर पाइथन की केस है तो आपको एक पर्टिकुलर सिनेरियो देंगे कि मुझे ऐसे ऐसे टाइप में पाइथन स्क्रिप्ट रन करनी है जो मुझे अल्टीमेटली रियल टाइम डेटा फेच करके देखी। देन वेब करेक्ट। स्क्रैपिंग क्या होती है, then REST APIs क्या होते हैं। nowadays APIs are also playing crucial role in web scraping, then Python coding। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आप इंटरव्यूज दोगे तो आपको क्वेश्चन बनते जाएंगे, वो क्वेश्चन के ऊपर काम करना है। गिट रिपोजिटरी जो है ये आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगी वंस यू एंटर इनटू द कॉर्पोरेट। आपको कंपनी के हिसाब से भी कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे। नाउअडेज डेटा इंजीनियरिंग में डेटा ब्रिक्स इज वन ऑफ द सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। देन इन ETL टूल इन्फॉर्मेटिका, अज्योर डेटा फैक्ट्री, देन टैलेंट, ऐसे बहुत सारे 2-3 सॉफ्टवेयर्स है, एप्लीकेशंस है जिसमें आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और गुड थिंग इज दैट everyone is having 30 days trial version for to learn the tools। तो ये 30 days ट्रायल वर्जन जो है ये आपने फुल्ली यूटिलाइज अगर कर लोगे तो यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू। सो आई थिंक जो सिक्वल क्वेरीज है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, पाइथन की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत टाइम लग रहा है, इट इज़ मोर टीडियस जॉब फॉर द कोडिंग, बट नाउअडेज चैट जीपीटी, जेमिनाई .ai, ये जो सारे टूल्स है ये डेफिनेटली इनिशियली आपको कोड लिख के देंगे। यू हैव टू जस्ट write or modify or update that code। That is again one of the technology you have, you can use that chat gpt because we are also regularly use chat gpt to write the code because जो प्रैक्टिस करते हैं वो कोड बहुत छोटे रहते हैं। नाउ वो मुझे जब मैं कंपनी ने स्विच किया तो मुझे पता चला कि शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा लगता कि अगर मुझे आउटपुट अचीव हो गया तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि एक इंटरनल एक फीलिंग आती है कि यार कोड बराबर रन हो गया और मुझे आउटपुट मिल गया। लेकिन नाउअडेज जब मैं कोड लिखता हूँ तो मुझे एक हफ्ता आउटपुट नहीं मिलता है बिकॉज द सिचुएशन एंड सिनेरियोज आर वेरी डिफरेंट। तो नंबर ऑफ लाइन्स आर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जब लाइन्स इंक्रीज हो जाती है तो वो जो इशू ट्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क अगेन। तो वो भी कैसे करना है, इशू ट्रैकिंग कैसे करना है, इशू को बैक ट्रैक कैसे करना है, दिस इज अगेन वन ऑफ द चैलेंज। और वो एक्सपीरियंस के साथ ही आप सीखोगे। कितना भी अनूप सर बताएंगे कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, दैट विल नॉट वर्क इन इंडस्ट्री। सो ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा। पॉसिबिलिटीज आर आल्सो देयर। यानी एक सिंगल स्क्रिप्ट है वही रन करना है, उसमें एरर है ऐसे नहीं, देयर आर मल्टीपल कनेक्शन। यहाँ से डेटा आता है, वहां जाता है, वहां से फाइल आती है, तो वो एरर उसी जगह पे है कि 4 जगह पे, दैट इज आल्सो प्रॉब्लम। यस, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मेरा। शुरुआत में मैं एक वेब ऐप पे काम कर रहा था जिसमें मुझे बैकएंड कोड लिखना था पाइथन के लिए। तो क्लाइंट की एक अजीबोगरीब रिक्वायरमेंट थी कि उसको पाइथन स्क्रिप्ट थ्रू उसके शेयर पॉइंट को कॉल कर रहा था और शेयर पॉइंट से जो कुछ भी अपडेटेड फाइल थी, यानी इट डिपेंड्स अपॉन टाइम स्टैम्प एंड द डेट, वही फाइल दूसरे फोल्डर में जाना चाहिए थी, बाकी फाइल को हाथ नहीं लगाना था। ठीक है। सो इसके लिए मुझे बैकएंड कोड लिखना था। तो शुरुआत में मैंने बहुत सर्च किया कि हाउ टू कॉल एपीआईज ऑफ शेयर पॉइंट, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ अलग पॉलिसीज होती है, तो वो सबसे पहले ओपन करनी पड़ती है, तब तक आप शेयर पॉइंट किसी को भी शेयर पॉइंट को हाथ नहीं लगा सकते। तो उसके लिए मैंने स्लम पॉइंट करके एक लाइब्रेरी है, पाइथन स्लम, तो वो स्लम पॉइंट लाइब्रेरी इंप्लीमेंट की और मैंने एपीआईज कॉल किए और एक कोड लिखा। तो वो कोड लिखने के लिए मुझे 15 दिन लगे क्योंकि मैं हर बार अलग अलग एरर्स को फेस कर रहा था और वो एरर जब सॉल्व करते करते मुझे 15 डेज लगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें तो है, ये रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में ही आएगी। ठीक है। ये आपको कोई भी हैकर रैंक, लीड कोड या कोई भी जो प्लेटफॉर्म है उस पर नहीं रहेगी। दे आर जनरलाइज्ड कोडिंग प्रैक्टिसेस एंड दीज आर द एग्जांपल्स टू एक्सप्लोर द न्यू लाइब्रेरीज, न्यू फंक्शंस ऑफ पाइथन। पर मुझे इसलिए मैं भी कहता हूँ, यानी तुमने जैसे चैट जीटीपी ये बोला कि अभी स्टूडेंट को जो मैं छोटे छोटे असाइनमेंट या लैब्स देता हूँ उनको बोलता हूँ आज चैट जीटीपी से आंसर तो निकाल लोगे, बट दैट विल जस्ट शो योर सेटिस्फेक्शन कि मैंने किया, मुझे दिखाने के लिए नहीं दिखाना है आउटपुट। यू हैव टू डेवलप द लॉजिक, सो इट इज बेटर टू रिस्टेन फ्रॉम देयर करंटली। जब आप लीड कोड हैकर इनिशियल
इनिशियल फेज में चैट जीपीटी यूज नहीं करनी चाहिए, यस, वो तो करेक्ट बेस्ट करेक्ट। है। हाँ, इंडस्ट्री में होगा एज यू सेड, बट इट इज अ बिगर कोड, तो उसमें वो पूरा ही यूज हाँ, होगा ऐसे नहीं, बट स्टेप बाय स्टेप इट कैन बी यूटिलाइज। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं पाइथन एकेडमी में पाइथन की कोडिंग कर रहा था, तो जनरली अनूप सर जुपिटर यूज करते थे, जो बहुत यस, ही कंफर्टेबल है, और इट लुक्स लाइक जब पाइथन रोड कोड जो है वो एकदम बढ़िया रन होता है, आउटपुट मस्त दिखता है। लेकिन इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा वीएस कोड यूज होता है, तो आप लोग करेक्ट, वीएस कोड के भी ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जुपिटर ओके, जनरली कुछ अगर डेटा बड़ा होगा, इन मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हाँ, होंगे और वो मुझे करेक्ट, pandas library में fetch करने हैं, there is a limitations of Jupyter, so you can go यस, through VS Code first, install VS Code, very basic है। VS Code में आप SQL भी लिख सकते हो by add-ons, आप Python कोड लिख सकते हो, उसके एनवायरनमेंट जो है वो अलग अलग क्रिएट करके आप कोड रन कर सकते हो। आप लिनक्स करेक्ट, सिस्टम में भी यूज कर सकते हो। और एक चैलेंज मैंने फेस किया कि जनरली वी यूज विंडोज लैपटॉप्स, सो इन इंडस्ट्रीज कोई कोई इंडस्ट्रीज ऐसे होती है जो विंडोज लैपटॉप नहीं देती, वो लिनक्स सिस्टम देती है आपको, तो उसके अलग यस, चैलेंजेस है, क्योंकि मुझे लिनक्स भी नहीं पता था। तो मैं जब शुरुआत में लिनक्स लैपटॉप यूज करने लगा, तो उसके जो बेसिक कोड्स है वो पहले मैंने सीखे, वो इम्प्लीमेंट किए, जैसे एल एस एल ए और रिपोजिटरी जो है वो भी मैंने यूज किया। फिर ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस जो है वो ओवरकम करने के लिए आपको हमेशा ऑन द टोज रहना पड़ता है इंडस्ट्रीज में, वो आपको कोई सिखाता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल तो है ही सीखने के लिए, कुछ प्राइवेट चैनल्स है, वो भी आप सीखिए, यूडेमी कोर्सेस है, कोर्सेरा कोर्सेस है, वो आप पढ़िए। मैंने और एक चीज एक्सप्लोर की, दैट इज लिंक्डइन लर्निंग। अगर आप उसका प्रीमियम लाइसेंस लेते हैं तो यस, 1 मंथ के लिए, तो उसमें बहुत अच्छे कंटेंट्स के साथ कोर्सेस अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो, लर्न कर सकते हो उससे। वहाँ पे भी कुछ कंपाइलर्स बेस्ड लैब्स है अवेलेबल्स है, जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना करेक्ट, पड़ेगा, फोकस देना पड़ेगा, तभी आपको ये अचीवमेंट मिलेगी, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। क्योंकि पाइथन कोडिंग के लिए भी अगर आप देखोगे तो 100 लोग अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, उसमें से अगर आपको हाईलाइट करना है खुद को, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आने चाहिए। अगर कोई बंदा 10 लाइन का कोड लिख रहा है, तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज दैट कोड टू 5 to 6 लाइन्स। तो ये सारी चीजें आपको, जब आप इंटरमीडिएट लेवल टू एक्सपर्ट लेवल पे काम करोगे तब आएगी। बेसिक लेवल पे आप तो चैट जीपीटी से, जैसे अनूप सर ने बताया कि अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है, तो यू कैन गेट द रेडीमेड कोड फ्रॉम चैट जीपीटी, you can implement it in your Jupyter, edit that, and you will get the desired output. So that will not work for you at initial phase, because अगर आपको लॉजिक डेवलपमेंट नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग प्रॉपर नहीं है, अगर आपका प्रैक्टिस कम है, तो यू कैनॉट सर्वाइव इन द मार्केट फॉर 6 मंथ्स। आपको कैसे तो भी आप 6 मंथ्स निकाल लोगे, उसके बाद जो चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि कैसा है कि इंडस्ट्रीज में लेवल बढ़ते जाती है फॉर एवरी करेक्ट, ईयर, और वो आपको हमेशा चैलेंजिंग टास्क ही देंगे। आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि बीइंग अ सीनियर अभी आपको सिर्फ टीम लीड करनी है, या फिर आपको सिर्फ पाइथन को रिव्यू करना है, रिव्यू नहीं करना है, आपको हमेशा पाइथन को लिखना ही है, क्योंकि उसमें हमेशा देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन राइटिंग द कोड। आपको ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैंने जो कोड लिखा है वो परफेक्ट है। अगर आप किसी सीनियर को लिखाओगे तो बोलेगा ये तो 4 लाइन का कोड है, आपने 10 लाइन लिख दिया। सो दिस तो करंटली निखिल, हाउ यूर डे टू डे लाइफ, क्योंकि आप उसी लाइन पे हो अभी, कि अभी कैसे चलता है आपका दिन, कैसे शुरू होता है और कैसे एंड होता है अभी एट तो कॉन्वर्ज है। ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि बस मैंने बहुत ही टफ है, मैं बताता हूँ सर्वाइवल, क्योंकि नाउअडेज ऐसा है कि अगर आप काम करोगे, अपना परफॉर्मेंस दिखाओगे, तो यू हैविंग अ गुड जॉब रोल, अदरवाइज देयर आर ऑलवेज अ ले ऑफ, ठीक है। तो वो जो तलवार रहती है वो कभी भी कट सकती है। तो डे डे टू डे लाइफ में अगर आप ऑन द टोज रहोगे, आप अपडेटेड रहोगे, आप प्रोएक्टिव अप्रोच रखोगे, तो आप हमेशा हाईलाइट रहोगे, और आपका हमेशा ये दिखेगा टीम को कि ये बंदा जो है ये हमेशा एक्टिव रहता है, और जो करेक्ट, कुछ भी इश्यूज आते हैं वो सबसे पहले ऐसा नहीं कि दूसरे के ऊपर ढकल देना कि मेरा टीममेट है वो देख लेगा। तो उससे अच्छा, अगर वो इशू आपके स्किल से रिलेटेड है, तो आपने पहले प्रोएक्टिवली वो देखना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए।
और Correct. और एट द सेम टाइम अगर वो सॉल्वेबल नहीं है तो यू हैव टू रिपोर्ट टू योर सीनियर्स. सो डे Yes. टू डे लाइफ में मेरा काम ऐसा है कि मेरा डे स्टार्ट होता है 10 बजे. ठीक है, माई टाइमिंग स्टार्ट फ्रॉम 10 to 7, बट 7 इज नॉट अ फिक्स टाइमिंग. और 10 से जब शुरुआत होती है डे की, तो सबसे पहले एक क्लाइंट का डीएसएम होता है, डेली स्टैंडर्ड रिपोर्ट मीटिंग, जिसमें दिन Okay. भर अपन क्या काम करने वाले हैं और कल क्या काम किया था उसका एक रिपोर्ट देते हैं हम लोग क्लाइंट्स को. फिर जो दिन भर में एक्टिविटीज है वो प्लान रहती है, उसमें कुछ कॉल्स रहते हैं, कुछ सेशंस रहते हैं, कुछ इंटरनल कॉल्स रहते हैं, कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इंटरनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं. तो ये सारी चीज़ें प्लान रहती है. उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट को ये बताना पड़ता है कि क्या काम हुआ, क्या इश्यूज फेस किए हमने, और वो रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या अप्रोच फॉलो किया. तो ये सारी चीज़ें जो है ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन द डे इज़ ऑलवेज बिजी. और जब टाइमलाइंस होती है कोई भी प्रोजेक्ट्स की, तो आपको सैटरडे संडे को भी काम करना पड़ सकता है, तो रेडी रहना पड़ता है उसके लिए भी. थोड़ा सा घर में Yes. एडजस्ट करना पड़ता है सारी चीज़ें, लेकिन वो मज़ा Correct. आता है. ऐसा नहीं है कि बोरिंग लाइफ है, कॉर्पोरेट में आ गया मैं तो अभी मैं Yes. बहुत बिजी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप अपडेट रहना चाहते हो टेक्नोलॉजी से, अगर आप बहुत अच्छी पोस्ट चाहते हो फ्यूचर में, मल्टीनेशनल में भी पोजीशन पा सकते हो आप, अगर आप कंटिन्यूअस लर्निंग फेज में रहोगे तो. अगर आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ पाइथन आता है एंड आई वांट टू बी अ पाइथन डेवलपर फॉर 5 to 10 years, so that will not work for you. आपको हमेशा मल्टीटास्किंग, मल्टी क्रॉस फंक्शनल भी आना चाहिए. अगर आप मल्टी क्रॉस फंक्शनल हो तो आपकी डिमांड जाता है कंपनी में, और आप हमेशा टॉप 5 के लिस्ट पे रहोगे. अगर आप टॉप 5 के लिस्ट में नहीं हो, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव. और अगर आप छोटी कंपनी से स्टार्ट करते हो, स्टार्टअप से स्टार्ट करते हो, तो मैं और एक चीज़ बता देता हूँ कि स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा काम रहता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ Correct. पे प्रोसेसेस सेट नहीं रहती है. आपको बहुत अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, राइट फ्रॉम, अगर आपका एक पर्टिकुलर समझ लो से वीएस कोड रन नहीं हो रहा है, वहां से स्टार्ट होता है शुरुआत. ठीक है, कि वीएस कोड में पाइथन कोड रन ही नहीं हो रहा है, अलग अलग एरर दे रहे हैं. सो वहां से शुरुआत होती है. और अलग अलग टाइप के स्टार्टअप में आपको प्रॉब्लम फेस करने हैं. अगर आप वो रिजॉल्व करते हैं तो इट्स गुड, अगर नहीं करते हैं तो वर्क ऑन दैट कि हाउ टू रिजॉल्व दैट. अगर आप एक्सपर्ट Yes. नहीं हो तो आपको इनिशियली 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, लेकिन वो 5 दिन को मैंने कैसे कम करना है. ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन इज ऑलवेज देयर, स्कोप ऑफ वर्क इज ऑलवेज देयर. तो इम्प्रूवमेंट हमेशा आपको करनी ही है, और वो आपका एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है लाइफ का व्हेन यू जॉइन द कॉर्पोरेट. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के आपको हमेशा ऑन द टोज ही रहना है. ठीक है, ऐसा Correct. नहीं है कि मैंने वो पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गया हूँ, अभी मैं लोगों का रेटिंग दे रहा हूँ, मैं पीएमएस यानी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में अभी मेरा लोगों को रेटिंग देने का काम है, तो आपको भी ऊपर कोई ना कोई रेट कर रहा है. ठीक Rating है, दे ही रहा हूँ. रेटिंग दे ही रहा है, तो इट इज अगेन आपको वो चैलेंज फेस करना है. ऐसा नहीं है Correct. कॉर्पोरेट्स में कि जो ऊपर में बैठे हैं वो हमेशा एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ केस. यहाँ पे राइट फ्रॉम द लीडरशिप टू द जूनियर पाइथन डेवलपर या जूनियर इंजीनियर, ये सब लोग एक ही एक्टिविटी पे फोकस रहता है कि क्लाइंट सेटिस्फैक्शन कैसे होना चाहिए, टाइमलाइंस कैसे अचीव होनी चाहिए, क्वालिटी वर्क कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव होनी चाहिए, क्या क्या प्रेजेंट करना है, क्या प्रेजेंट नहीं करना है. दैट इज अगेन वन ऑफ द टास्क That is also एंड स्किल. तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी. और correct. मुझे अभी लगभग 4 years हो गए इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स. तो Yes. मेरा अभी मेरा थोड़ा कोडिंग कम हो गया है. मैंने अनूप सर को बीच में बताया भी था कि अगर कोडिंग कम हो गया है तो मैं मार्केट में सर्वाइव कर पाऊंगा क्या. तो अनूप सर बोले कि यू आर वर्किंग ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड यू आर गुड एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑन दोस टेक्नोलॉजीज, सो डेफिनेटली यू कैन सर्वाइव. Correct. तो Yes. तो पाइथन कोड लिखना मैं नहीं भूला, बट यस डेफिनेटली अभी लास्ट 2 years से मैंने वेब ऐप जो बनाई थी उसको अभी 2 साल हो गए, उसके बाद मैंने पाइथन कोडिंग नहीं की है. लेकिन स्टिल मैं कभी कभी जूनियर्स के साथ एक दो कॉल ले लेता हूँ और उनको पूछता हूँ कि आप रिसेंटली क्या कोडिंग लिख रहे हैं, मुझे बताइए, ताकि मैं भी थोड़ा सा टच में रहूँ. Sometimes you may have to review also, may not to code, but you have to review the यस, juniors code, रिव्यू, and उसके लिए आपको तो करेक्ट, आना ही चाहिए. So that आना ही thing is चाहिए. there.
क्योंकि Yes, पाइथन एक that is. ऐसी लैंग्वेज है, ये बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है, अलग अलग लाइब्रेरी सुनने को मिलती है मुझे, जो Mm, आजकल के लड़के एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो वो मैं uh, बहुत ही एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि इतनी सारी लाइब्रेरीज है पाइथन में, उसको एक्सप्लोर करना correct, यानी इट्स वन ऑफ द बिग टास्क। तो वो correct. अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। और वही है Yes. कि की टेक अवेज आपको हमेशा याद रखने हैं, कि सबसे पहले आपको Mm, सॉफ्ट स्किल पे भी काम करना है, ठीक है। उसके yes. बाद आपके जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो आपने अच्छे रखनी चाहिए। उसके बाद आप एक क्लाउड टेक्नोलॉजी भी आपको आनी चाहिए, जैसे जीसीपी है, Correct. अज्योर है, एडब्ल्यूएस है। अगर आप सिर्फ पावर बीआई डेवलपर के लिए जा रहे हैं या सिक्वेल डेवलपर के लिए जा रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्सिटीज के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना इज अगेन वन ऑफ योर प्रायोरिटी। तो Yes, इसके लिए yes. आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, फोकस इज द की। अगर आपका फोकस हट गया वो कोडिंग से, पेशेंस इज द की। अगर पेशेंस भी छूट Yes. गया तो यू कैन नॉट कोड। उसके True. बाद मैं कुछ टिपिकल एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं उप्स कंसेप्ट के ऊपर। नाउअडेज Mm-hmm. डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, ये भी मैंने Correct. अनूप सर के एकेडमी के बाद सीखा, क्योंकि इसके लिए भी मैंने शायद अनूप सर आपको कांटेक्ट किया था कि मुझे Yes, yes. डीएसए सीखना है, तो उसके लिए आपके पास कुछ बुक्स है क्या। तो आपने मुझे Yes. एक बुक भी बताया था, और आपके लाइब्रेरी से वो Core मैंने man. देखा भी था एक बार आके। हाँ, तो तो वो डीएसए के लिए भी मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया था सीखने में, बिकॉज फिर से मैं बता रहा हूँ कि बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, आपको Mm. कोडिंग जब भी सीखना है, नहीं आपको स्ट्रगल करना ही है। और आप मान के Yeah. चलिए कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, बिकॉज Correct. दोज हु आर Mm. फ्रॉम सीएस बैकग्राउंड, दे विल अचीव दैट टारगेट इन 2 to 3 days। लेकिन बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर यू हैव टू अचीव दैट टारगेट इन 5 to 6 days। अगर आप ऐसा मान के चलोगे इनिशियल फेज पे तो ठीक है, लेकिन आपको कंप्लीट वो इसी के साथ करना है जो लोग 3 से 4 डेज में वो काम सीख रहे हैं। तो Correct. इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने हैं, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना है वहाँ पे। आपको हार्ड वर्क हमेशा शो करना है कंपनी में, और आपको हमेशा कंपटीशन में रहना है। इफ यू आर नॉट इन कंपटीशन देन यू आर आउट ऑफ द कंपनी, दैट्स इट। वहाँ पे That's कोई भी रिलेशन या कोई भी दोस्ती कुछ काम में नहीं आती। काम में नहीं है. It's overall performance at the end of the Mm. day. Correct, correct. So these are So the that is key also takeaways. there. Yes. So great. So lot of things coming from Nikhil, and from as a wise man is always wise. So Mhm. within a 3 years, Nikhil has a lot of and wonderful experience right from the beginning. और हमेशा वो एक point हमेशा बोलता है निखिल कि मैं मैकेनिकल से हूँ, मैकेनिकल, and that remains, है ना, वो कोई अपनी हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते, that is there, but yes you can definitely change the future, है ना, so that is One where more you have thing. started. Yes, but one more thing. In IT industries, if you can count the number of engineers, 50% are of mechanical engineer background. That Because is there. मैन्युफैक्चरिंग में अभी बहुत ज़्यादा पैकेजेस या जो रोल है वो लोग नहीं करना Correct. चाहते। तो Mhm. इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग फील्ड छोड़ के सब लोग आईटी में इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी है, लर्निंग Correct. कर्व जो है आपका ये हमेशा इंक्रीजिंग मोड में रहेगा, और आपको बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। अगर आप पढ़ने के Correct. लिए आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेशन चाहते हैं, तो कॉर्पोरेट्स इज द बेस्ट फील्ड टू ग्रो। Correct, correct, correct. So that will be there. And as you said, and for all of you who are listening also, patience should be there, क्योंकि निखिल ने भी काफी इंटरव्यू दिए. ही हैज अगेन, ऐसा है कि मैं हमेशा सभी को कहता हूँ कि इंटरव्यू आते रहेंगे जाते रहेंगे, देयर विल बी द कर्व्स, है ना, सो ईच इंटरव्यू टेक इट लाइटली लो, ऐसे तो नहीं बोलूंगा मैं, बट डोंट टेक टू सीरियसली ऑल्सो कि इसमें मेरा हुआ ही नहीं तो मेरा आगे कुछ होगा ही नहीं. हाँ, each interview you take it as a step, है ना, म्हणजे मराठीमध्ये पायऱ्या म्हणतो, so you just go step by step above, and there are the good chances every interview you will learn something new, something you will करेक्ट। find out कि हाँ ये भी मुझे करना चाहिए, और वैसे फिर निखिल has improved on that, and yes he got the job, and in Nagpur only, that was the most important thing for him, so he don't have to move from here or there. And obviously the each year, as he said, you have to check with yourself what is currently industry going on, what are the things you should learn more, because every year I can, instead of year I can say every month something new comes in the market,
and client are crazy, means they want to use it immediately. उनको लगता है कि बस यही मुझे चाहिए ऐसा. क्योंकि अभी जैसे specifically for Python Academy we also started the course on generative AI because that is the Okay. demand. So we should, Yes. और as मेरे पास भी स्टूडेंट आते तो they directly say generative AI करेंगे क्या. So that is there, but that is a, I can say, third or fourth level. उसके पहले Correct. आपको बेसिक करना ही है ना. So that is what I say. So, any last advice, Nikhil, you can give to all our students and all the others joining here? Yes, so prepare before preparing to any interview, first update your Git repository. Then second is update your resume with your skills. Don't uh, put your skills that you are not working. So improve your presentation skills before entering into the corporates. Then learn the Python code from LeetCode and HackerRank. Earn the badges, then put that badges on your LinkedIn profile so that everyone can see that you know Python and SQL. Then the learning platforms like IBM, Coursera, they are also wonderful. Their contents are good. Even you can go for LinkedIn Learning also, where the Yes. as per your role there are multiple contents are available. So you can go through all the contents and learn the things as much as you can. Great. So many points. Those who are learning should write down immediately because that is the point you should go through. So you will have a greater career in the future. So thank you, Nikhil, for all this interactive session and information you provided. Hopefully, all of them we are joining here will get a lot of information out of that, and they should implement that also, है ना. सिर्फ सुनना ही काम, तानसेन कानसेन जैसे मैं बोलता हूँ कि सुनने का काम नहीं करना है ना. You have to implement that with your Correct. patience. So Correct. coming back to final thing, the Python Academy, which we are conducting this data journey. So we are in this business of teaching and all things from last 6 to 7 years. Obviously, the Python was the key for that, but now multiple courses has been added. Specifically, the data analytics is there, generative AI is there, SQL part also has been added, the Power BI dashboard and all that also has been added. So even full stack development, specifically in Django and Flask, that also has been added in the course. So multiple things are all are available there, but the thing is you have to approach. Okay, so obviously you have to approach and you have to start preparing right now because there are the bright times in future. If you are prepared right now, you will have a good opportunity in the future and a better future for data analytics and machine learning. So thanks again, Nikhil, for joining this session and have a wonderful career in future also. Thank you. Thank you. Thank you very much. Closing the session now.